Hi, hi. Hello everyone. Very good, very good. So, am I audible? Am I visible properly? And shall we start the session or shall we wait for a few people more to join? Hi Sheetal, hi Kajal, hi Baldev, hi Sharad, hi Palak. Jai Hind, Jai Hind. Good evening. Hello Shubhangi. Okay. So, shall we wait for people to join? Yes, sir. Okay. Okay. So how's your preparation going on, everyone? Are you going to write 2022, 2022, 2023? I don't know much about like how people. Hi Savita. Hi Harsh. Hi. Hi. Good going. Okay. So we'll. I want you all today to ask as many questions as possible, and so that you can clarify your doubt. Right. Okay. So we'll start the session. Right. Okay. So. So let me introduce myself first. So my name is Ayush, and like, can we do it in English language or mix it both Hindi and English? दोनों में करें या English Hindi? हाँ. So we'll mix it, okay? We'll do it both in English as well as in Hindi. And if you have any doubt, you can just ask me questions regarding if there is some issue with communication, like if you don't understand Hindi or if you don't understand English. Okay, so let me start the session. So my name is Ayush. I born and brought up in Delhi. I come from Delhi, and uh, I've done my engineering in information technology, Hindi English. I'll do it both. And then I worked in Infosys Technologies for 3 years in Hyderabad. And then I left my job and I started preparing for civil services examination back in 2015. 2015 में मैंने चालू किया. And after that I've given attempts like 2015, 16, 17, 18, all mains I've given. मैंने मेंस लिखे और देन मैंने इंटरव्यू दिए इन बिटवीन, और उसके बीच में मैंने एसएससी के पेपर्स क्लियर करे ट्वाइस. I cleared as an auditor in Government of India, but I did not join the service. And then it was 2020 was my last attempt, and I took a break in 2019, and then I again started in 2020 as my last attempt, and with God's grace I got rank 437, and I'm looking forward to join the service as well. Okay, मैं हूँ कि अब अच्छे से देश की सेवा करने का हमें मौका मिले, सो दैट हम अच्छे से कर पाएँ. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है? हाँ, हिंदी में भी बोलूँगा मैं. वॉइस क्लियर है क्या? आवाज़ आ रही है? हाँ. तो ये है मेरे बारे में. और मैं और बताऊंगा. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. इंजीनियरिंग मैंने दिल्ली में ही करी थी, MSIT कॉलेज से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करी थी. तभी मैंने इन्फोसिस को ज्वाइन किया एज अ सिस्टम इंजीनियर. ओके, very good. Voice is crystal clear. Fine. So today we are going to discuss first what is the agenda. हम क्या एजेंडा आज करने वाले हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की. आई विल गिव यू एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी. ओके, और उसके बाद कैसे करना चाहिए. उसके बाद यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, यू कैन मोल्ड योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ बेसिक स्ट्रैटेजी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी नो. सबको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं बिकॉज आप टॉपर स्टॉक देखते हैं, आप उनके बारे में देखते रहते हैं. तो उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे. आई वॉन्ट यू टू आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल अबाउट आंसर राइटिंग, अबाउट एवरीथिंग. Okay, okay. So as you know, there are three aspects, three phases in civil services examination. I'm looking to join IPS. Okay, I want to join IPS. So there are three phases: prelims, mains, and interview. Prelims is all about the factual data, or you need to know about the facts, and you need to do the MCQs question to clear the examination. Mains is all about your analysis, understanding, so that you can clear
mains examination by writing mains answer. There are 9 papers. Okay. 9 papers where 1 essay, 4 GS 1, 2, 3, 4 and 2 papers of optional. My optional was law. I took law as an optional, though I am an engineer. That's why I took time. Like I could not able to clear my 2 mains because I took law as an optional and I could not able to score well in law. But later on I scored well. My optional is law, lucky. Okay. सो प्रीलिम्स के बारे में हम बात करेंगे, मेंस के बारे में भी बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेजेस बताता हूं, आपको एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है. ठीक है, एग्जाम को अप्रोच करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अभी एक सिस्टम में होंगे, मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट यूपीएससी, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं हम 2024 2023 एग्जाम देंगे. तो यू हैव इनफ टाइम, राइट. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप यूपीएससी में कूद रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूपीएससी, राइट. तो सबसे पहले अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, पानी को छूते हैं, कितना कैसा है पानी, कितना गर्म है. सिमिलरली फर्स्ट थिंग आपको करना है, आपको यूपीएससी को अंडरस्टैंड करना है. ओके, आपको यूपीएससी को अंडरस्टैंड करना है कि यूपीएससी क्या पूछता है, कैसे पूछता है और क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी. सबसे पहले हमें यूपीएससी को समझने के लिए क्या करने की जरूरत है, फर्स्ट हमें सिलेबस को देखने की जरूरत है. सेकंड, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की जरूरत है. अगर आप मेंस को में देखेंगे तो सिलेबस काफी अच्छे से डिटेल्ड मेंशन है, लाइक GS1, GS2, GS3, GS4, राइट. उसका मेंस में अच्छे से सिलेबस गिवन है. तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको अपनी दीवार पे पोस्ट कर लेना है. ठीक है, GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का. और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखने हैं कि सिलेबस से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. पहले 10 दिन, for 10 days you need to do the same thing. You need to see your syllabus every morning. Try to understand what is written in your syllabus. For instance, I'll give you an example. Like, you know, a lot of issues were going on during elections last time, where there was a problem between Mamata Banerjee and Honorable Prime Minister as well. So here people don't need to go towards that what is the political issue. People need to understand that what is the issue about the Election Commission of India, because constitutional bodies is mentioned in your GS2 paper, right. तो उसके लिए हमें क्या, GS2 को समझने की जरूरत है. तो हमें क्या करने की जरूरत है, we need to post GS1, GS2, GS3, GS4 and we need to read that syllabus every now and then, again and again. Okay, so this is the first thing. Secondly, when you read newspaper every day, you need to think that, okay, if you're reading the pages, you need to try to link, okay, this news is connected to which, this news is connected to GS1, this news connected to GS2, this news connected to GS3 or this news connected to GS4. Okay, so this is the first step. You need to first understand UPSC. For understanding UPSC, you need to first see the syllabus, download the syllabus, post the syllabus on the wall, and then you need to understand that how you need to go forward. कैसे आपको जाना है, कैसे आपको पढ़ना है यूपीएससी को. ओके, तो सबसे पहली बात ये है. तो जब ये क्लैरिफाई हो गया, 10 दिन आपने बिता लिए, 7 दिन आपने बिता लिए ये देखते हुए कि GS1, GS2, GS3, GS4 में क्या है, या प्रीलिम्स कैसे पूछ रहे हैं, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स वो कैसे पूछ रहा है. ठीक है, तो आप इस एग्जाम को पूरा समझ जाओगे. द मोमेंट आप इस एग्जाम को समझ गए तो उसको क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, नाउ सेकेंड थिंग क्या करना है, सेकेंड थिंग, बहुत वाइजली आपको आपका ऑप्शनल चूज करना है. यू नीड टू चूज योर ऑप्शनल वेरी वेरी वाइजली. ओके, वेरी वेरी वाइजली. नाउ ऑप्शनल चूज करने के बहुत इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं. आई थिंक पहले स्पीकर्स ने भी आपको ये बता रखा है ऑप्शनल कैसे चूज करें. पहला तरीका, क्या आप उस ऑप्शनल में कंफर्टेबल हैं या नहीं है. तो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल है, टेक दैट, उसको उसी वक्त ले लो. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आपका ऑप्शनल है तो गो विद दैट, राइट. सेकंड, क्या वो ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है, राइट. इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, क्या हम पढ़ सकते हैं उस ऑप्शनल को. लेट्स से PSIR कंसिडर टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल, तो हम PSIR लेंगे, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. आपको एंथ्रोपोलॉजी लग सकता है, आपको मैथमेटिक्स लग सकता है, आपको कोई भी ऑप्शन लग सकता है. सेकंड इज इंटरेस्ट. थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज हाउ मच स्कोरिंग that optional is, how much scoring. For instance, anthropology scoring extremely well for the past few years, so that's why people take anthropology. If you see the toppers, they take anthropology. So third is क्या वो scoring है, and fourth is any good guidance available
for that optional or not. Mark my word, this is the very very important consideration. Okay, ऑप्शनल की अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है, अगर उसके अच्छे मटेरियल हैं और अगर उसके अच्छे टीचर्स हैं, देन इट वुड बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू. सो फोर्थ इज, डज दैट ऑप्शनल, डू यू हैव द गाइडेंस ऑफ दैट ऑप्शनल, राइट? सो ये चार चीजें देखेंगे तो आपने ऑप्शनल चूज कर लिया. अब अगर ऑप्शनल चूज करने में दिक्कत है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, मैं आपको आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ आपको सजेशन दे दूंगा ऑप्शनल में, राइट? तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे. उस पर हम एक साथ ऐसे अभी बात नहीं कर सकते, सबके लिए ऑप्शनल डिफरेंट हो सकता है. आप अपने इंटरेस्ट को चूज करिएगा कि ऑप्शनल कैसे करना है. तो पहला, यूपीएससी को समझना है, पहला स्टेप होगा आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस. सेकंड, हमें ऑप्शनल डिसाइड करना है उन चार पैरामीटर से जो हमने बोला. दोस पैरामीटर्स हैव टू बी डन, राइट? थर्ड, नाउ थर्ड इज व्हाट, जब ये चीजें क्लैरिफाई हो गई, इफ दीज थिंग्स आर क्लैरिफाइड, देन द थर्ड थिंग वी विल डू, वो क्या होगा? हमें स्टैटिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. स्टैटिक को, रिमेंबर यूपीएससी में स्टैटिक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? सो स्टैटिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एनसीईआरटीज को पढ़िए, राइट? एनसीईआरटीज को पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए. टेक्स्ट बुक्स हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, राइट? ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहले व्हेन यू आर रीडिंग द स्टैटिक सब्जेक्ट, देन व्हाट यू गोना डू, you emphasize on the static subject and you emphasize on your optional. अब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ऑप्शनल भी करें, स्टैटिक भी करें और करंट अफेयर्स भी करें, राइट? तो एट दैट टाइम व्हाट वी गोना डू, एट दैट टाइम हमें अपने करंट अफेयर्स को कम कर लेना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. ओके, करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स आप इतना मत करिए जब आप स्टैटिक ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स में क्या कर सकते हैं? यू कैन वॉच अ डेली न्यूज एनालिसिस, यू कैन वॉच अ डेली न्यूज एनालिसिस, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. आई थिंक राउज डीएनए भी अच्छा है और बाईजूस का भी अच्छा है, सो दैट आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना, राइट? तो जैसे ही आपने डेली न्यूज एनालिसिस देखा और डेली न्यूज एनालिसिस के साथ you need to also understand the basic things which are coming in newspaper. Don't go so deep because you don't have time, because you have to cover your static subject, right? At that time आप प्रीलिम्स के लिए क्विज कर सकते हैं. क्विज आपको आईएएस बाबा और इनसाइट्स ऑन इंडिया पे कुछ क्विज मिलेंगी, ओके? तो आप क्विज सॉल्व करेंगे उससे. तो जब मैंने बताया थर्ड फेज क्या होगा, स्ट्रेंथन योर बेसिक सब्जेक्ट्स, उसके लिए एनसीईआरटीज, टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना है. And then at the same time, don't much emphasize on the current. Basic emphasis is required because you don't have enough time to do that, right? Prelims ke liye source I'll tell you. First I'll complete, then I'll take your questions, guys. First I'll complete, then I'll take your questions one by one. Just be patient, okay? Now the moment you have done, the moment you complete your basic subjects, you strengthen your basic subject. At that time, what is required? What is required? Now you have to jump towards the practice sessions. practice कैसे कर सकते हैं? प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस करनी है, मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है. प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस करनी है और मेंस की. प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फॉर प्रीलिम्स प्रैक्टिस वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चन. यू विल टेक द क्वेश्चन पेपर्स. आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर उस पर भी मिलेंगे. आप इनसाइट्स ऑन इंडिया के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, आप विजन आईएएस के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, राइट? और एट द सेम टाइम स्टार्ट राइटिंग 2 or 3 आंसर्स, ओके? मेंस के आंसर्स, एवरी डे मेंस के आंसर लिखिए, ओके? एंड उसको चेक करवाइए. चेक कैसे करवाएंगे? चेक आप किसी उस इंसान से करवाएंगे जो या तो क्लियर कर चुका है या उसने मेंस क्लियर कर रखा है, सो दैट पर्सन विल गिव यू फीडबैक फॉर दैट. तो जैसे ही आपको फीडबैक मिलने लग जाएगा, आप इंप्रूव करने लग जाएंगे, ओके? तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपका करंट का काफी अच्छे से ज्यादा से स्टार्ट होने लग जाएगा. तो प्रैक्टिस, तब करंट भी पढ़ने लग जाएगा न्यूज़पेपर से. तो स्टैटिक हो गया, करंट हो गया विद प्रैक्टिस, राइट? जब आप ये सारे प्रोसेस कर रहे होंगे, स्पेशली जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर प्रीलिम्स नोट मेकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते होंगे और आपको कुछ नया चीज मिलेगी तो आप उसकी नोट बनाइए, ओके?
तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूपीएससी को समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, सेकेंड चीज़ आपको करनी है कि आप ऑप्शनल बड़ी वाइजली सेलेक्ट करें। थर्ड चीज़, आप जो अपने बेसिक हैं उसको बहुत स्ट्रेंथन करें, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर बेसिक। एंड फोर्थ चीज़ आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और तब आप एम्फेसिस करेंगे करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा, राइट। ये 4 चीज़ हैं जो मैंने एम्फेसाइज करी। अब किसी को डाउट है कि क्या करना है, कैसे करना है, आई मीन नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट, और कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, सो यू कैन आस्क मी ऑल दोज डाउट्स, राइट। So can we take questions one by one? Yeah, you ask me questions, because if I keep on telling that guys ask questions so that we'll, yes, practice makes a man perfect, exactly. Okay, ask question, any doubt you have. So one person asked me how to make notes. ओके, नोट्स कैसे बनाने, नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन। नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स बनाने आपने सीख लिए तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वॉन, आप वैसे ही कर लेंगे, राइट। तो नोट्स बनाने की टेक्निक होती है, अगर आप पहले स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, राइट। जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 1 चैप्टर में 1 पेज में उसके नोट्स बनाइए। आप कोई लेट्स से बुक पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, उसके नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत के सेलेक्टिवली नोट्स बनाए जा सकते हैं, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आप लक्ष्मीकांत ऐसे ही पढ़ लें तो देर इज़ नो नीड टू मेक नोट्स फॉर दैट ऑल्सो, राइट। तो पहले आप अपने जब स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली बनाइए। पहले चैप्टर को पढ़िए, समझिए और फिर नोट्स बनाइए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप रेप्लिकेट करेंगे वही सेम चीज़ें जो कि बुक में लिखी है। तो सबसे पहले पढ़िए, चैप्टर को समझिए और फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। ये नोट्स बनाना हुआ सबसे पहले जब आप स्टैटिक कर रहे हैं। उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज में कूदेंगे तो नोट्स कैसे बनाने पड़ेंगे। प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें तो आप स्टैटिक नॉलेज से सॉल्व कर लेंगे, राइट, लेकिन कुछ चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत फैक्चुअल होगा। तो आप एवरनोट का यूज़ करिए। एवरनोट इज़ एन ऐप, राइट, एवरनोट इज़ एन ऐप। एवरनोट का आप यूज़ करिए ऑनलाइन नोट्स, या फिर आप वन नोट भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन नोट्स। और आप क्या करिए कि आप नई नई जो फैक्चुअल डिटेल सीख रहे हैं, आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर और जो आप सीख रहे हैं आप उसको नोट में डालते रहिए। तो नोट को सेग्रीगेट करिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, आईआर, राइट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे ऐसे अपने एवरनोट या फिर ऐसी नोटबुक्स में सेग्रीगेशन होने चाहिए आपके पास। एंड जैसे ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं तो उस सेग्रीगेटेड नोटबुक में वो चीज़ लिख दिया करिए, ओके, वो सेग्रीगेटेड। जब ऐसे आप करने लग जाएंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपकी नॉलेज और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगी। और जब आपको रिवीजन करनी होगी तो आपके पास कंसोलिडेटेड नोटबुक होगी कि कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं, राइट, कंसोलिडेटेड नोटबुक होगी, राइट। तो ये नोट्स बनाने की एक टेक्निक है कि आप जब स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ें तो आप कॉपी पेन से अपने सब्जेक्ट को लिखिए, लेकिन आप जब टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो आप सेग्रीगेटेड नोटबुक्स बनाइए और उसके अंदर चीज़ें लिखते रहिए क्या मैंने नई चीज़ सीखी, और उस नई चीज़ सीखी हुई को आप प्रैक्टिस रिवीजन करिए बाद में। अगर आपने उसको रिवीजन कर लिया बिफोर प्रीलिम्स 2-3 बार तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ओके, दैट इज़ वन थिंग। एक अनदर चीज़ होती है कि करेंट अफेयर्स के कैसे नोट्स बनाए जाएं, जो कि बहुत टफ है करेंट अफेयर्स को हैंडल करना। तो करेंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं, तो करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एवर नोट में ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे GS2 GS3। और अगर कोई इशू आ रहा है न्यूज़पेपर में तो आपको उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन आया, राइट, उसकी न्यूज़ आई, तो आप क्या करोगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन को और रिसर्च करके एक प्रोज कॉन्स और वे फॉरवर्ड का नोट बनाओगे और उसको अपने नोट्स में डाल लोगे, राइट, उसको अपने नोट्स में डालोगे और वो नोट आप रेफर करते रहोगे आगे चलते हुए। तो ऐसे आपके 100 and 200 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, 200 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, डबलिंग फार्मर इनकम,
राइट, गवर्नर रोल, ऐसे ऐसे, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, जब आप डिटेल्ड नोट्स उस पर बनाते रहेंगे, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस टॉपिक को देखना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा, इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा और नोट बनाना पड़ेगा, राइट। ओके, वनीशा ऑप्शनल में इशू है, विल रिजॉल्व इट ऑल। तो ऐसे नोट्स बनाने आपको, स्टैटिक के नोट्स कॉपी पेन में, डायनामिक चीज़ों के नोट्स आपको जो चेंज हो रहे हैं उसको आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने पड़ेंगे, एवर नोट या वन नोट पे। अगर ये चीज़ कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ओके, इन चीज़ों के। तो ये नोट मेकिंग चीज़ होती है। एस्से के कैसे नोट बनाने, एस्से का नोट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमोशंस ढूंढने पड़ेंगे न्यूज़पेपर में, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि न्यूज़पेपर में कुछ इमोशनल चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई, ऑक्सीजन लंगर बाय सिक कम्युनिटी, तो दीज इश्यूज यू शुड राइट इन योर एस्से कॉपी एंड यू शुड गिव दीज इंस्टेंसेस और इमोशनल स्टोरीज इन योर एस्से, फाइनल एस्से। तो यू शुड सर्च दीज इमोशनल थिंग्स मेंशन इन योर न्यूज़पेपर। तो ऐसे करके आप एक नोट्स बनाएंगे, डिटेल नोट्स बनाएंगे। मैं एक ऐसा करूँगा कि मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूँ नोट्स का, एवर नोट का। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक, अगर मैं यूपीएससी गाइड से बात करूँगा और मैं आई शेयर माई स्क्रीनशॉट ऑफ माई नोट्स सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ आई मेड नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स। ओके गाइस, तो ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चूज ऑप्शनल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपका ऑप्शनल क्या है। माई ऑप्शनल इज, माई मीडियम इज English. Yeah, please say in English. So I'll say in English and Hindi both to make people understand. Yeah, how to improve writing skill for description. Okay, writing skill कैसे improve करनी है? Very very good question. इसको आपको बहुत ही seriously लेना है कि आपको अगर आपका मेंस क्लियर करना है तो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। ओके, तो उस अच्छी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए what you gonna do is you take a topic, ओके, एंड डोंट थिंक अबाउट दैट आपको वो टॉपिक विद इन 9 मिनट्स में लिखना है। टेक योर टाइम, टेक 1 hour, टेक हाफ एन आवर, बट वॉट यू गोना डू, यू रीड ऑल द कंटेंट अबाउट दैट टॉपिक एंड देन ट्राई टू बिल्ड वॉट शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक, वॉट शुड बी द बॉडी ऑफ दैट टॉपिक एंड वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ दैट टॉपिक। लाइक फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से यू आर राइटिंग अ पॉलिटी क्वेश्चन, ठीक है, आप पॉलिटी का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या लाइएगा। लाइक इंट्रोडक्शन में बात हो रही है अगर क्वेश्चन की डेमोक्रेसी, राइट, तो या फिर आप इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 से आर्टिकल 35 है फंडामेंटल राइट्स, तो आप ये चीज लिखेंगे, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। इंट्रोडक्शन, अगर एग्जामिनर ने आपकी इंट्रोडक्शन में देख लिया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन पता है, आर्टिकल्स मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको मार्क्स देगा वहां पे इंट्रोडक्शन में। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमी का कोई आंसर लिख रहे हैं तो इकोनॉमी में आपको डेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, राइट, या फिर आप डेफिनेशन लिखिए इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको डेटा डेफिनेशन कुछ लिखनी पड़ेगी, राइट। फिर आप जो क्वेश्चन पूछा है उसको डील करेंगे बॉडी में, राइट, उसको डील करेंगे बॉडी में, 1 by 1 वॉट एवर इट इज रिटन उसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी पूछा है, प्रोज कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड, ये 3 चीजें आएंगी, प्रोज कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड। और आपका कंक्लूजन कैसे होगा, कंक्लूजन आप ऐसे बोलेंगे कि अगर ये वे फॉरवर्ड हो जाए, अगर जो हम लिख रहे हैं, तो वील रीच टू अ सिचुएशन, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, जैसे डबलिंग द फार्मर इनकम विल हैपन बाय 2022, राइट, प्रीएम्बल विल अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल। So this is how you write introduction, content, articles, polity में, body में, whatever mention in the question, pros, cons and way forward, and conclude with what we want to achieve, what is the objective of that question. Like अगर fundamental rights है तो आप preamble से link करो उसे, right? This is how we need to write answer for that question answer, right? Another question. Hindi medium students are not in majority. What make you think become an IAS officer? Referred old, okay, old NCERT and new NCERT. I followed new NCERTs and I found new NCERTs are extremely good. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत, आप बस एक न्यू NCERTs फॉलो करिए। हिस्ट्री में, मिडिएवल हिस्ट्री में आपको ओल्ड NCERT की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप उसको स्किप कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। तो
आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करिए, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जो भी न्यू एनसीईआरटीज है दैट यू कैन फॉलो. व्हाट टाइप ऑफ करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट? ओके, करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है? सो how to ensure that which current affairs are important? So that's my first question, ki first you need to understand UPSC. So make sure your syllabus should be pasted on the wall. Okay, so when syllabus is there, so when you're reading newspaper you can link कि syllabus में क्या लिखा है, और जो syllabus में लिखा है वो important हो जाएगा. Okay, तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे न्यूज आई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज मेंशन इन द सिलेबस इटसेल्फ, राइट. सो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, हम करेंट अफेयर्स करेंगे. करेंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर से हम सिलेबस को लिंक करेंगे और सिलेबस से हम करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे. यस, काइंडली शेयर योर व्यू ऑन सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, whether to go for self study or go for coaching. So it is very subjective. Many people are very comfortable with self study because coaching में क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है, राइट. लेकिन कोचिंग में देयर आर सम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑल्सो जो आपको गाइड कर देते हैं, जो आपको नहीं पता, आप अपने से खुद से नहीं कर सकते. तो आप अपने आप को जज करिए कि क्या मेरी नॉलेज अच्छी है उस सब्जेक्ट में. जैसे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो कर रहा है जो कि उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी करने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत आएगी. तो उसको उस चीज़ की कोचिंग कर लेनी चाहिए अगर उसको उसकी चीज़ की कोचिंग में अगर उस चीज़ उसको समझ नहीं आती. लेट्स से मैंने सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी जो कि GS1 में है, 2-3 क्लासेस देखी थी ऑन यूट्यूब एंड आई फाउंड दैट वो क्लासेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, जबकि मैं खुद से वो चीज़ पढ़ता तो मैं नहीं इतना सीख पाता, राइट. तो कोचिंग, आई वुड से, इफ़ यू फील यू आर वीक, इफ़ यू फील दैट योर बेसिक्स आर वीक, then you should go for coaching, and that too I would say take online coaching. However, most of the people are actually passing this examination by self study only. तो ये आपकी डिस्टिंग वो है कि आप चाहते क्या हैं, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी. Okay, can we give examination in last year of graduation? No, you cannot. That too, you know, you need to clear the graduation and then give the paper. So what you can do is that just prepare from the graduation, like second year, third year, and once you clear the graduation, like complete the graduation, then you, how to keep motivating in this journey? Okay, that is a very, very good question and a tough question. How to keep motivating? So for that I would say talk to your family members, your friends. Whenever you're down and out, you feel that this examination is very, very tough, so talk to your family members. They will actually help you. They will suggest you what you need to do. वो आपको समझाएंगे कि नहीं, इस एग्जामिनेशन में आप क्यों आए थे. एक तो ये है. सेकेंडली, आपका पर्पस क्या है आने का. अगर आपका पर्पस है कि मुझे कुछ करना है, अगर मुझे सर्विस में जाना है, कुछ मीनिंगफुल चेंज लाना है, तो वो आपको मोटिवेट करता ही रहेगा हमेशा. ओके, हाउ टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद अ जॉब. So preparing with job is a tough thing, but many aspirants clear this paper along with job. So what you need to do, आपको हर रोज़ 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे और आपको अपने स्टैटिक पे काम करना पड़ेगा. 3 से 4 घंटे निकाल के स्टैटिक और न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे. और सैटरडे संडेज़ को आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, राइट. क्या करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट स्टैटिक सब्जेक्ट और करेंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे जो आपके वीकडेज होंगे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा. और सैटरडे संडेज को आपको ऑप्शनल करना पड़ेगा. पहले कुछ टाइम ऐसे करना होगा, जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे सब्जेक्ट्स में, फिर आपको टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे सैटरडे संडे, और मंडे टू फ्राइडे आपको न्यूज़पेपर्स पे ध्यान देना पड़ेगा. एग्जाम बिकॉज एवरीवन स्टडी द सेम बुक्स. वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. ओके, डाइवर्सिटी जॉब. ओके, both are best. So one more question. CSAT. Okay, the question is how to prepare for CSAT. So CSAT के लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा. आपको एक बुक होती है RS अग्रवाल की, वो बुक खरीद लीजिए. उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, तो उन मैथ्स के टॉपिक को आप सॉल्व करिए, उनको समझिए,
एंड उनको सॉल्व करते रहिए. विद टाइम, विद प्रैक्टिस यू विल डू इट. और जो इंग्लिश है, जो उसमें इंग्लिश दे रखी है, वो ज़्यादा टफ नहीं होते पैसेजेस. अगर आप उनको ध्यान से करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. तो दैट्स इट. यू कट योर सेल्फ विद द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को कम यूज़ करिए, अपने फ़ोन को कम यूज़ करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और अपने टारगेट्स रहिए, अपने प्लान बनाइए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करिए. जब भी डिस्ट्रैक्शन हो तो सोचिए वाई यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल, क्यों आपको आईएएस बनना है, क्यों आपको आईएफएस बनना है, क्यों आपको आईपीएस बनना है. तो जब वो थॉट आएगा तो मेरे ख्याल से आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. ओके. हाँ. I am 28 years old. Can I prepare for UPSC? Yes, you can prepare. So the maximum age for general is 32 years of age, and you can always prepare for. You have 4 years. So you can do that. You can definitely clear that. People clear in 2 to 3 years itself. What app to use for note making? I said Evernote. Okay, right? EVERNOTE. Evernote. There is an online app. There is OneNote also. Evernote and OneNote. If you start using Evernote and OneNote, that is extremely helpful. If you face any issue, you can ask me also on Instagram. You can message me. I'll reply to that. I might take little time, but I'll definitely reply. How to improve your English speaking? So start speaking in English with your peer group or with your family. आई मीन जस्ट अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करिए वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. इंग्लिश के न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़िए. जब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपनी कमांड लाने की कोशिश करिए, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा. स्ट्रैटेजी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. अभी कुछ नहीं. स्कूल स्टूडेंट्स आप इन्जॉय करिए. जब आप कॉलेज में आए तब सोचिएगा. योर एज इज़ 23. कैन आई प्रिपेयर? येस, डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर नाउ. एंड 23 years, it means you have enough time. How to do it? So we have to follow which topic reach in newspapers and not any institute. Is it good habit? Current be done in a monthly magazine. Okay, monthly magazine का क्वेश्चन है, क्या करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से करना चाहिए? तो आंसर इज मंथली मैगजीन आपको हेल्प करेगी, बट वो सब कुछ नहीं है. मैंने मंथली मैगजीन फॉलो करी थी 1 साल, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि न्यूज़पेपर्स में जो रेगुलर चीज़ें आ रही हैं उसके नोट्स तो बनाने पड़ेंगे. न्यूज़पेपर में जो चीज़ें रेगुलर आ रही हैं, आपको वो सारे इंस्टेंसेस लेने पड़ेंगे, कहीं नोट बनाने पड़ेंगे, और उनको यूज़ करना पड़ेगा आराम से. मतलब जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा. तो मंथली मैगजीन आई वुड से दैट विल ओनली हेल्प यू, बट दैट इज़ नॉट इनफ. ओके. हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. सो ग्रेजुएशन में प्रिपेयर करना तो बहुत आसान है. सबसे पहले आप अपना वो सोचिए कि आपको ऑप्शनल कैसे लेना है. सो यू चूज योर ऑप्शनल फर्स्ट and then start even taking coaching about that optional, or if you are comfortable, then you can always do that. You will start preparing on your own, and I would say during graduation concentrate on your optional and static subject. Don't too much concentrate on current affairs, because current affairs तो change होते रहेंगे, right? current affairs तो change होते रहेंगे. तो पहले आप अपने ऑप्शनल और स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स लेट कीजिएगा. How to maintain timings to prepare for UPSC with subject till tough? My optional subject is law. I took law as an optional. How many subject? How to read newspaper? So read newspaper कैसे करना है? आपको न्यूज़पेपर रीड करने के लिए आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पढ़ना है, समझना है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके. फिर आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है. एडिटोरियल पेज आपसे नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं एडिटोरियल पेज के लिए. और जैसे ही आपने एडिटोरियल पेज पढ़ा, फिर आपको नेशनल चीज़ें पढ़नी है, आपको इकोनॉमी और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की चीज़ें पढ़नी है. मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ता था. और एक्सप्लेन्ड पेज मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं एक हफ्ते में 7 एक्सप्लेन टॉपिक्स पढ़ लेता था. एवरी डे आई डोंट फॉलो इंडियन एक्सप्रेस. Every day I used to follow The Hindu, and after that on Sundays I used to sit and read all 7 explained pages of Indian Express. That really helped for me. मुझे अच्छा से consolidate करने में help हुआ था न्यूज़पेपर को उससे.
हाउ टू फोकस लॉन्ग टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. आई थिंक डिस्ट्रैक्शन का मैंने बताया. जो भी आपका पर्पस है उसको फील करिए कि क्या आप क्यों जाना चाहते हैं, IAS IPS क्यों बनना चाहते हैं. और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन के जो सोर्सेज हैं, जो कि फ़ोन होता है, जो कि बाहर घूमना होता है, उनको थोड़ा कर्ब करिए. उनको आपको बाहर नहीं जाना चाहिए. हैव टू माई ऑप्शनल इज लॉ. देवर्षि सर, विच इज़ बेटर टू टेक ऑप्शनल, वेदर ज्योग्राफी और जियोलॉजी? सो ज्योग्राफी और जियोलॉजी ऑप्शनल, दे बोथ आर कंसिडर्ड एज टफ. सो मैंने तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स देखे हैं तो वो टफ ऑप्शनल था, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल. आई थिंक जियोलॉजी का सिलेबस उससे कम है. दैट यू नीड टू आस्क एनी पर्सन हु हैज़ डन इन ज्योग्राफी. Tips for answer writing. Tips for answer writing is very simple. Every day try to write one answer. When you complete your basic content to some extent, every day try to write one answer. After some days, like say 20 days, try to write 2 answers per day. Okay, and once you feel comfortable, then you start writing one whole test of 20 question every 10 days or in a week. So if you do that gradually, पहले एक question every day, फिर 2 क्वेश्चन एवरी डे, और फिर कुछ टाइम बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए तो आप एक वीक में या 10 दिन में एक टेस्ट पेपर लिख लीजिए. तो क्या होगा, आपका 1 और 2 क्वेश्चन से आपका कंटेंट अच्छा बनेगा. विद टाइम योर अंडरस्टैंडिंग, योर कंटेंट विल इम्प्रूव. एट द सेम टाइम द फुल लेंथ टेस्ट, 20 क्वेश्चन टेस्ट यू गोना राइट, उससे आपको हेल्प होगी कि आप पेपर कंप्लीट कर पाएं जो आपको यूपीएससी में आपको करना पड़ेगा वहाँ पे. ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फर्स्ट ईयर BA साइकोलॉजी, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ मच टाइम टू गिव टू GS. कितना टाइम GS को देना है ये बहुत सब्जेक्टिव है देवर्षि. आपको सबसे पहले स्टार्ट करने पड़ेगी बेसिक बुक से, और वो आपको देखना पड़ेगा आप कितना टाइम उसमें लेते हैं. आई वुड सजेस्ट कि 2 to 3 आवर्स एवरी डे तो आपको GS को देना पड़ेगा, और 1 आवर 1.5 आवर आपको करंट अफेयर को देना पड़ेगा. तो यू शुड टेक आउट टाइम. How is anthropology for optional? Anthropology is the best optional. I have seen many anthropology students clearing this paper. So if you feel anthropology is fine, then you should actually take anthropology. अगर आपको anthropology में comfortable नहीं है तो आप PSIR versus anthropology. Very very nice question, Kumar Manish. So anthropology is more scoring. PSIR is more interesting to many, most of the students. So I would say that it's up to you. I would say that anthropology is performing much better than PSIR, but it's up to an individual which to take. You should take which optional you want. मैं तो कहूँगा एंथ्रोपोलॉजी लो, और अगर आपको उसकी कोचिंग चाहिए तो आप कोचिंग ले सकते हैं, और आप उसमें फिर आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. केमिस्ट्री ऑप्शनल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. Which optional is best, sociology or political science? So sociology or political science are also equally good, but I would say that see where you are comfortable. मैंने जैसे 4 आपको चीज़ें बताई थी, है ना, क्या थी वो 4 चीज़ें आपको, कि आपके पास इंटरेस्ट कैसा है, आपकी क्या ग्रेजुएशन है, ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे, देख लोगे, तो आप उस हिसाब से चूज करिए. आई वुड से PSIR इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन सोशियोलॉजी, बट ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी भी अच्छे कर रही है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. लास्ट 2-3 ईयर से मैंने देखा है पबैड अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. पीपल हु आर टेकिंग पबैड, दे आर स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल. तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं. हाउ लॉ एज एन ऑप्शनल, आई वुड से लॉ इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. लॉ, आई हैवंट सीन पीपल हु सिक्योर्ड रैंक. इस साल लॉ की रैंक नहीं आई है ज़्यादा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लॉ लें. अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है लॉ और आप बहुत अच्छे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि यू कैन टेक लॉ एज एन ऑप्शनल. ओके, what another question? Physics, yeah, LSW. Law as an optional, I already told it is a tough optional. So many aspects to cover, और marks ज़्यादा नहीं आ रहे लॉ में, तो you can think about it whether you want to take it or not. हिंदी मीडियम के लिए ऑप्शन क्या है? हिंदी मीडियम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है. आई थिंक हिंदी लिटरेचर इज परफॉर्मिंग मच बेटर, तो आप ले सकते हैं. ज्योग्राफी कैसा है? मैंने ज्योग्राफी पाया है कि ज्योग्राफी काफ़ी टफ ऑप्शनल हो रहा है. ज्योग्राफी में एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और ज्योग्राफी को क्लियर करना बहुत टफ हो रहा है. तो ज्योग्राफी को आप थोड़ा पहले उसका सिलेबस देखिएगा, कैसे पेपर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके यू शुड थिंक अबाउट इट. अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर मैप्स. तो मैप्स कैसे प्रिपेयर करने हैं?
तो मैप्स के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले तो अपनी वॉल पे एक मैप लटकाना होगा इंडिया और वर्ल्ड का, ठीक है। तो जब भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आ रही है तो आप उस मैप में देखते रहिए, वो आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन ये इनफ नहीं है, तो आप एक एटलस लीजिए। एटलस खरीदने के बाद आप कुछ यूट्यूब वीडियोस लिखिए, मैप्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, काफ़ी अच्छी वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे। वो जो बता रहे हैं उनसे आप अपने एटलस पे मार्क करिए लोकेशंस। जब आप ये चीज़ कर लेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे तो आपको आप अच्छे हो जाएंगे मैप में। और मैप के क्वेश्चन 2 से 4 आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, माय इंस्टाग्राम आईडी देयर इज नॉक्टर्नल सोल। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, आयुष। तो आप उसमें मुझे फॉलो करिए एंड वट एवर योर डाउट्स यू विल आस्क ओवर देयर ऑल्सो एंड आई विल रिप्लाई। ओके, विच साइड शुड आई टेक आफ्टर 12? विच टाइप ऑफ इकोनॉमी टाइप वी शुड कवर इन प्रीलिम्स? अच्छा, इकोनॉमी प्रीलिम्स में कैसे कवर करनी है? तो इकोनॉमी में 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो इकोनॉमी में स्टैटिक भी है और इकोनॉमी में डायनामिक एस्पेक्ट भी है। तो स्टैटिक के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड शंकर गणेश। ओके, बहुत सिंपल बुक है शंकर गणेश, आप पढ़ लीजिए। और डायनामिक करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर में देखिए, और बाईजूस पे एक वीडियोस आती हैं इकोनॉमी, हर वीक एक इकोनॉमी की, तो आप उसको एक बार देखिए तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमी इन अ वीकडेज में जो भी इकोनॉमी की न्यूज़ होती है वो बाईजूस पे कवर की जाती है, तो वो आप करिए। और आप शंकर गणेश की बुक पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़िए। ये 3 चीज़ें आप करेंगे, आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। सोशियोलॉजी हाउ इज गोना, ओके, why psychology as an optional will help you in ethics? श्रेया, आप साइकोलॉजी लेंगे तो आपको एथिक्स में हेल्प करेगा, और साइकोलॉजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, इंग्लिश लिटरेचर एज एन ऑप्शनल, समवन आस्क्ड। इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल अच्छा है। आप एक बार इसमें ये देखिए कि कितने लोग क्लियर कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, एंड अगर किसी ने क्लियर करा है तो आप उससे सोशल मीडिया में कांटेक्ट करिए कि उन्होंने कैसे क्लियर करा है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में भी आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपकी लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड है कि नहीं है। ओके, देन व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल। हाउ टू रिमेंबर डेट्स इन हिस्ट्री? डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स नहीं, आपको ईयर्स रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो आप जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो उसको स्टोरी की तरह पढ़िएगा। जैसे ही स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो कुछ ईयर्स बार बार आएंगे। जैसे गांधी जी इंडिया में कब आए? 1915 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? 1920 में। तो वो अपने आप ही आपको याद होने लग जाएंगे। और आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाइए। जैसे कि मैं नोट्स बहुत बनाता था हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत फैक्चुअल है, तो मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स बहुत अच्छे बनाए थे। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको विद टाइम अपने आप ही हो जाएगा। एस्से राइटिंग के बारे में बताइए। कौन एस्से राइटिंग क्या कर रहा है? एस्से को पहले समझना है। एस्से में क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। एस्से में मसाला चाहिए एस्से में मसाला उसको चाहिए। एस्से में सिंपल जीएस की तरह नहीं लिख सकते। तो एस्से में मसाला कैसे लाएंगे? उसको कहते हैं इमोशन करना, इमोशंस लाना, राइट? तो एस्से में हाउ वुड यू ब्रिंग इमोशन? लाइक आई रिमेंबर in my essay in 2020 there was one question on inequality. तो मैंने I started my introduction in this way that there is a building, there is a one lavish building Antilia in Mumbai where Mr. Mukesh Ambani lives. At a throw stone distance away there are Dharavi slums. This shows the wide inequality in our country, right? तो ऐसे करके आप कुछ कहानियां बनाइए, उसको इंट्रोडक्शन में डालिए और उसको कंक्लूड भी करिए, और बॉडी को डिफरेंट डायमेंशंस में खोलिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और उन सब के एग्जाम्पल्स डालिए। एग्जाम्पल्स भी थोड़े इमोशनल टाइप होने चाहिए, जो एग्जामिनर को थोड़ा सा कनेक्ट कराए टॉपिक के थ्रू। ओके, ये ऐसे के लिए है। और कैसे है? लॉ एज एन ऑप्शनल मैंने बताया, लॉ इज अ टफ ऑप्शनल। इफ योर बैकग्राउंड इज लॉ देन यू कैन थिंक अबाउट इट। लॉ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया 2020 में, मुझे और पता चलेगा, मैं बताऊंगा, बिकॉज आई हैवंट सीन मेनी पीपल क्लियरिंग फ्रॉम लॉ। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए? एनसीईआरटी के नोट सिंपल है। एनसीईआरटी पहले पढ़ो, एक चैप्टर, लाइक हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई, एक चैप्टर पढ़ा, जो समझ आया उसको कॉपी में एक पेज में लिख लिया। तो एक चैप्टर 1 पेपर,
one chapter, one paper, one side of the paper complete, so that you will complete NCERT notes within one textbook. Okay. Hindi medium, agriculture optional. I'm not having much idea about that. Agriculture optional, I think you should research on who is good agriculture optional person, who has clarified, who has cleared the paper, and then you can. बॉटनी एंड ज्योग्राफी में से बताइए हाउ टू अंडरस्टैंड मैप. मैंने बताया मैप को कैसे करना है. आपको मैप को रोज देखना है, न्यूज़पेपर से कनेक्ट करना है, और आपको ये भी करना है कि आप कुछ वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करें और उसमें से एटलस को लिंक करें. ओके, एटलस से जो आ रहा है, जैसे आपको साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, उन सबको मेंशन करना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर जा रही है, कौन कौन सी हिल्स हैं, और वो आप अपने एटलस पे मेंशन करते रहिए. जब आप मार्क कर लेंगे एटलस पे, उसको रिवाइज करिए थोड़े दिन बाद अगेन एंड अगेन, और प्रीलिम से पहले अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. व्हाट अबाउट सीसेट, हाउ टू प्रिपेयर? आई सेट सीसेट के लिए आप अपने मैथ्स को थोड़ा स्ट्रांग करिए. RS अग्रवाल करके एक मैथ्स की बुक होती है, उसको सॉल्व करिए. उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन होंगे. उसको सॉल्व करने के बाद आप सीसेट का टेस्ट दीजिए. 1-2 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि सीसेट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. इफ यू गेट अराउंड 80 or 85 or 90 marks in CSAT, it means you are on the safer side. So don't think much about that. Okay, so I would say that do RS Agarwal and practice question on CSAT. That is enough. Okay, is coaching important? As I said, if you are weak in that subject, then coaching is important. If you have confidence that you can read on your own, then coaching is not important. In fact, when you stay at home, you can spend more time on that. Maths के बारे में optional. Maths optional you can take when you are really good in maths. Okay, when you are really good in maths, because maths does not have any relationship with GS. तो आप इतना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके पास अच्छे से मैथ्स ऑप्शनल के लिए आपको एक बार टेस्ट सीरीज भी देखनी पड़ेगी, और जब आप अच्छे हो तभी देखिए. हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? नाउ दिस इज समथिंग एज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखने, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, एंड यू नीड टू फॉलो द टाइम टेबल. तो एवरी वीकली एंड एवरी डेली एंड एवरी मंथली 3 तरीके के टाइम टेबल होंगे. डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल. उस टाइम टेबल को फॉलो करिए. अब उसमें 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या 2 घंटे, ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है. विच कोचिंग इज बेस्ट? आई हैव नो आइडिया. आई डिडंट टेक एनी कोचिंग, सो मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी है. आप ऑनलाइन कोचिंग पे देख सकते हैं कि आपको जो अच्छी लगे. यू कैन फॉलो दैट. हाउ टू मैनेज टाइम इन प्रीलिम्स जनरल? मैनेज टाइम इन प्रीलिम्स, आपको सिंपली पहले स्टैटिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, और फिर आपको टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं. जब आपने टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो स्लोली आप अच्छे होते जाएंगे प्रीलिम्स में. रिवीजन स्ट्रैटेजी टिप्स. रिवीजन स्ट्रैटेजी सिंपल टिप्स. अगर इफ यू आर मेकिंग नोट्स प्रॉपरली, देन रिवीजन इज इजी. ओके, सो फॉर दैट you read your basic textbooks. So at one go you should mark your textbook. So पहली बात तो है, अब बस मार्क वाली चीज़ों की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, और जो आपने नोटबुक में अपनी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहना है. बस ये 2 ही चीज़ें करनी है, इसके अलावा रिवीजन आपको नहीं करनी. एलिमिनेशन टेक्निक इन प्रीलिम्स, दैट वी विल डिस्कस सम अदर डे. लाइक दैट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक कि कैसे एलिमिनेट करते हैं. I have cleared all my prelims, 5 prelims, so I really felt that my elimination technique was really good. So I'll discuss that in one of the mains. के लिए question याद कैसे करें? Mains के लिए, sir, is a procedure to join IIM. So once you become an IPS officer, तो after that you have to serve in a district as an SP first. जब आप काफ़ी टाइम तक सर्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, CBI, IB, डिफरेंट डिपार्टमेंट में. तो आप वहाँ पे CBR और IB में जा सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग IPS. तो आपको पहले IPS में जाना पड़ेगा. फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द टेस्ट सीरीज ऑनलाइन. सो देयर वॉज अ चैनल इन व्हेन आई यूज्ड टू फॉलो freeupscmaterial.org. just see that, right? Free UPSC material, you will get that channel. From there you can get all the tests. Okay, free UPSC. थैंक यू सो मच. ओके, कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा नौकरी मौके हैं?
ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. कुछ बचा है तो मुझसे पूछिए. I think we have covered political optional is good, is important. Polity is good for mains. Yes, polity is very important. 40 to 50% of your GS2 comes from polity. It is very very important. Which books are best for UPSC? So there is a book list. Okay, you can search that book list. हिस्ट्री के लिए आपको NCERTs और स्पेक्ट्रम पढ़नी है. पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है और थोड़ी NCERTs. ज्योग्राफी के लिए आपको NCERTs पढ़नी है. मैंने NCERT फॉलो करी थी और टेस्ट सीरीज लिखे थे. ओके, ये और इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने बताया शंकर गणेश पढ़नी है और आपको करेंट अफेयर्स फॉलो करने हैं. हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा होगा? हिस्ट्री ऑप्शनल अच्छा है अगर आप पढ़ने में, हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है. अगर आप बोर हो जाते हैं तो मत लीजिएगा बिल्कुल भी. इन द लास्ट ईयर ग्रेजुएशन, how to prepare ethics and yes, economy, how to shorten your own notes in the end, sir? Yes, this is a very very important question by Goku. When you have made your own notes, there is, when the exams are coming, जब एग्जाम आ रहे हैं उससे एक महीने पहले अपने ही नोट्स को और छोटा कर दो. जो 4 नोटबुक में नोट्स हैं उनको हाफ नोटबुक में कर दो, जिससे एग्जाम से एक दिन पहले वो पूरे नोट्स चले जाएं. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको उन नोट्स को पढ़ना है, देखना है क्या आपके दिमाग में रह रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है. तो जो रह रहा है उसको लिख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को ऐड करिए, तो आप उसको शॉर्टन कर देंगे. वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है. माय ऑप्शन इज लॉ, स्नेहू, एज आई टोल्ड. ओके, आई एम गोइंग टू एंटर इनटू सर्विस नाउ. आई क्लियर दिस ईयर UPSC 2020. लेना चाहिए ऑप्शनल में. टेल मी क्या लेना चाहिए ऑप्शनल. आप मुझसे पूछेंगे क्या ऑप्शन में लेना चाहिए. आई वुड से एज आई सेड 4 पॉइंट्स को फॉलो करिए. सोशियोलॉजी भी अच्छा है, PSIR भी अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा है. सारे ऑप्शन अच्छे हैं. एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सर, कैन वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन इंटरव्यू? सो इन इंटरव्यू you can fill the kind of language you need to follow. Do you need to follow English language or Hindi language? Whatever the language you have chosen, you can follow that language. English, I don't think it's allowed. If you have chosen Hindi, then you can speak in Hindi. If you have chosen English, then you can speak in English. How to prepare environment? Environment, there is a book called there is a Shankar IAS book, and also in environment I would say that follow monthly magazines of Vision IAS or any institute. So that book and monthly magazines, if you make notes of that, that is enough. Thank you. Public administration Hindi medium mein I have pass course. I think that is enough. So we'll end the session. Any 1 or 2 questions we can take, but okay, management optional, I have no idea. You should ask that. I think we'll so you can send me a message. My name is Ayush Srivastava, as I said, and my ID is nocturnal_soul, NOCTURNAL_SOUL, soul. Okay, 17. तो आप उस पर मुझे एक बार सर्च करिएगा and you can send me any message and I'll try to reply that message on time. Okay, I think that is enough. So we'll end this session. I wish and I hope that you clear this paper and just have confidence in you. अच्छे से पढ़ाई करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, तो आप क्लियर कर जाएंगे. मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में 6th अटेम्प्ट में क्लियर करा है. तो जब मैं 6th अटेम्प्ट में कर रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है. आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो कोई भी कर सकता है. अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए. नोबडी कैन स्टॉप यू. ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू. बस मेहनत और विश्वास रखिए. विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आई थिंक we'll end this session now. We have taken enough time. So all the best, guys. All the best. Do well, and try to give your best for this preparation. I am very very hopeful that you will succeed in this examination. Okay, guys. Bye bye. Take care.